Hi guys, sorry for last week वीडियो नहीं आ पाई कोई because I had fever and Diwali cleaning assignments. Also my performance went little down. But now cleaning is done and my performance is also back. So let's begin this video. So today's video will be on how different muscles work in street lifting elements, that is pull-ups and chin-ups, and their biomechanics, and how you can increase your 1 rep max by just doing some technique modifications. So let's start with pull-ups. I am not including muscle up in this video as it is pull movement only. So in pull-ups, you can see how a different muscle gets activated in these EMG studies. बट पुलअप में और भी बहुत सारी मसल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और ऊपर से जब आप अपना 1 रेप मैक्स ले रहे हो, जैसे इरेक्टर स्पाइन है, ओब्लिक्स, सेरेटस इंटीरियर, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ यही मसल्स एक्टिवेट हो रही है, बट मेनली योर आर्म मसल्स एंड योर बैक मस्कुलेचर ये ज़्यादातर यूज होता है, एंड योर फोर आर्म मसल्स एज वेल इफ दे आर वीक. Now let's see how different muscles get activated in different phases of pull-ups. According to study done in 2020, in the initial phase of pull-up, infraspinatus, brachialis and lower traps are most active. Lower traps mainly helps in depressing the shoulder blade. After the movement is initiated, your lats, bicep and teres major activation increases. In the top position, subscapularis and triceps also get activated. पर इसका मतलब ये नहीं कि ये भी मेनली काम कर रही है पुल अप करवाने में. Also, pectoralis major also gets activated in the top position as it helps in arm adduction. Pectoralis major, that is our chest muscle, is more active in chin-ups due to more arm adduction and less in pull-ups. Now let's talk about different variations of the pull-up. Pull-up is in pronated grip or palm facing away from the body, and chin-up is in supinated grip, palm facing towards the body. Another variation is neutral grip pull-up. They all have almost similar activation of all pulling muscles. If you ask me what variation to do, I would say pull-up as it's superior to all other variation. You can do chin-ups if you have greater 1 RM of chin-up before competition. You can do neutral grip pull-up in the end of the workout to train your forearm muscles. There are other variations as well. Let's compare pull-ups and chin-ups. Pull-up engages more muscle of posterior chain, mainly lats, and chin-up has higher activation of biceps. Chin-up engages more muscles of anterior chain. As you can see, my abdominal muscles working more in chin-ups. Closing position is easier in chin-ups for many as elbows are close to the body, so leverage is less. In chin-up, elbow flexion is mainly done by bicep and brachialis and very less by brachioradialis. But in pull-up, elbow flexion is done by brachioradialis and brachialis and less by bicep. So beginners may feel chin-up easier than pull-up as bicep is stronger muscle than brachioradialis. Also, in pull-up is more of adduction movement. There is more shoulder adduction in pull-ups, and in chin-ups there is more of shoulder extension. There are two fibers in our lats, horizontal fibers and vertical fibers. So pull-ups are training more of the fibers which are responsible for shoulder adduction, and chin-ups are training the fibers which are responsible for shoulder extension. But both are training your lats. ऐसा नहीं है कि chin-up में सिर्फ bicep यूज हो रहे हैं और pull-up में सिर्फ back यूज हो रही है. Both are training your back musculature almost equally. If you have wrist, elbow or shoulder issues, you can try ring pull-ups. क्योंकि इसमें rings हमारे according घूम जाती है, so there is less stress on our wrist and other joints. Now when you are attempting your 1 RM or training for it, you can use following suggestions which will surely improve your performance. So number 1 is how you grip the bar. The more low you will grip the bar, the weaker it will be. So try to get a good overhand grip. Gripping lower will also increase the distance of the pull, which you don't want if you are competing. Also apply chalk on hands with higher loads. अब grip में ये भी question रहता है कि thumb under the bar पकड़ें या thumb over the bar पकड़ें और फ़र्क क्या है इन दोनों में.
तो फ़र्क कुछ भी नहीं है इन दोनों में। जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। जनरली जितना वाइडर हम जाते हैं, थंब अंडर द बार पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो फॉर वाइडर ग्रिप्स थंब ओवर द बार पकड़िए, एंड फॉर शोल्डर विड्थ एंड नैरोअर ग्रिप यूज़ थंब अंडर द बार। नाउ सेकेंड थिंग इज़ हाइट ऑफ द वेट्स। सो या तो आप वेट्स को थाइस के बीच में रखो या फिर इतना रखो जितना अभी वीडियो में दिख रहे हैं। इस हाइट का ये फ़ायदा है कि यू कैन कंट्रोल योर किप एज यू हैव टू मेंटेन द कॉन्टैक्ट ऑफ योर फुट विथ प्लेट्स इन द एंटायर मूवमेंट। नाउ थर्ड थिंग इज़, जब आप इनिशिएट करते हैं पुलअप तो स्क्वीज़ योर ग्लूट्स एंड प्लेट्स। इससे देयर विल बी स्लाइट हिप एक्सटेंशन विच विल प्रोड्यूस हायर फोर्स। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि एल सिट पुलअप इज़ डिफ़िकल्ट टू इनिशिएट देन नॉर्मल पुलअप। दिस इज़ बिकॉज लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। It says that when a muscle is stressed to some amount, the amount of load it can take reduces. Our lats combined with thoracolumbar fascia, तो जब हम slight hip extension करते हैं तो length of the lats becomes shorter and it's easier to initiate the pull-up. तो अब आपने पुल-अप इनिशिएट कर लिया है, तो अब आती है चौथी चीज़, दैट इज़ स्क्वीज़ योर प्लेट्स थ्रू आउट द मोशन। प्लेट से अगर पैर हट गया तो अनवांटेड किप हो सकती है या फिर वेट स्विंग कर सकता है, जिससे मूवमेंट और मुश्किल हो जाएगा। नाउ फिफ्थ थिंग यू कैन डू इज़ व्हेन योर पुल अप बिकम हार्डर, मे बी व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर 1RM और यू आर ऑन योर लास्ट स्टेप, यू कैन स्क्वीज द बार as hard as possible. This will recruit more motor units and might help in the movement. Now let's move on to the sixth point. आप सब ने फील किया होगा कि when your pull-up becomes harder, you try to flex your hip or knee. I'm not talking about kipping, just bringing your knee and hip in flexion. इसका रीज़न भी वही है, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। अब ये भी कहता है कि जब आपकी मसल कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रैक्शन तक चली जाती है तो भी उसकी लोड लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब हम टॉप पोजीशन पे हैं, हमारे लैट्स मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो डूइंग दिस फ्लेक्शन मूवमेंट विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ द लैट्स एंड मे हेल्प इन द मूवमेंट। ऑल्सो आर एब्डोमिनस गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन वी फ्लेक्स आर हिप, बट दिस मूवमेंट मस्ट बी वेरी लिटिल व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इट इन द कॉम्पिटिशन। Now last thing I want to tell you that stay close to the bar. Moving away from the bar will increase the torque on the muscles and also make the weight swing. It means that bring your elbows directly towards your body like this, and not just initiating the movement and after that curling the elbows and bringing your chin in forward. You are not using your back muscles properly in this way. So after hanging, just try to bring your elbow towards your body like this, so you can activate your back muscles efficiently and improve your 1 rep max. So I have covered all the points in pull-ups. Now let's move on to our next movement, that is dip. So dip में हम में से बहुत सारे लोग pull-up से बहुत ज़्यादा ही वेट उठा सकते हैं, पर कभी कभार दुख भी देती है डिप्स। पर डिप में मेनली हमारे सारे के सारे प्रेसिंग मसल जो पुशिंग में हेल्प करते हैं वो मसल्स यूज होते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर फ्लेक्सर्स, हमारे एल्बो एक्सटेंसर्स और इंटरनल रोटेटर्स, अडक्टर्स। पर हम स्ट्रीट लिफ्टिंग में अपना 1 रेप मैक्स ले रहे हैं हैवी वेट्स के साथ, तो इसमें और भी बहुत सारी मसल्स यूज हो जाती हैं, जैसे हमारे एब्डोमिनस, लैट्स, ग्लूट्स। पर लेट्स टॉक अबाउट द मेन मसल्स। सो हमारी ट्राइसेप के 3 हेड होते हैं, लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और ये पीछे छोटी सी मीडियल हेड। तो लॉन्ग हेड 2 जॉइंट को क्रॉस कर रहा है, शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट, इसीलिए ये शोल्डर एक्सटेंशन में भी हेल्प करवाता है। बाकी दोनों हेड्स यहीं से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये सिर्फ एल्बो एक्सटेंशन कराता है। तो दूसरी मसल जो डिप में यूज़ होती है वो है पेक्टोरालिस मेजर। इसके ओरिजिन मीडियल हाफ ऑफ क्लैविकल से होते हैं और स्टर्नम से भी होते हैं और नीचे से भी होते हैं। तो हर फाइबर अलग अलग डायरेक्शन से अपने इंसर्शन पे जा रहा है। ऊपर वाले फाइबर्स ऊपर से नीचे जा रहे हैं, बीच वाले साइड में जा रहे हैं और नीचे वाले ऊपर को आ रहे हैं।
तो जो ऊपर वाले फाइबर्स हैं उनका मेन काम होता है ओवरहेड मूवमेंट में, और जो मीडियल वाले जो बीच में फाइबर्स हैं उनका मेन काम होता है जब हम फ्लैट बेंच करते हैं इस एंगल पे, और जो लोअर फाइबर्स हैं डिप में ये मूवमेंट होता है ये। तो इसमें लोअर फाइबर्स स्ट्रेच हो रहे हैं मैक्सिमम, और डिप में हम स्टार्टिंग पोजीशन में डिप्रेशन करते हैं, तो डिप्रेशन में भी ये लोअर फाइबर्स यूज़ होता है। ओवरऑल चेस्ट का फंक्शन है अडक्शन, फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन। डिप में हम फ्लेक्शन कर रहे हैं और इंटरनल रोटेशन हो ही रहा है साथ में, और अडक्शन में रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। तीसरी मेन मसल जो यूज़ होती है वो है इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। इसका मेन फंक्शन है शोल्डर फ्लेक्शन कराना। When we go wider in dips, our chest activation is greater due to more stretch in pectoral muscle. As you can see, more movement at shoulder joint and less on elbow joint. And when you go narrower in dips, there is more work done in elbow joint, as you can see more flexion at elbow joint. So work of tricep increases. Also, if you lean more forward, the load on the interior fibers of the deltoid increases. Many people in gym will say dips are bad for shoulder. Reason they give is high shoulder extension which stretches the anterior capsule of the shoulder. But in street lifting we don't go to full shoulder extension. You don't have to retract your scapula while doing dips. Keep scapula neutral, chest closed, scapula depressed and engage your core and lean forward and go directly down. This way you will not have that much shoulder extension and you can load them easily in this range. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि पहले वाली डिप में चेस्ट स्ट्रेच ज़्यादा हो रही थी तो वो बेटर है, पर उसमें हम डिप को ज़्यादा लोड नहीं कर सकते। इसमें हम हैवी वेट यूज़ कर सकते हैं, तो द स्टिमुलस इज़ मोर और लेस सेम। और अगर हाइपरट्रॉफी के लिए ही करना है तो और बहुत एक्सरसाइजेज है करने के लिए। सो डिप इज कम्प्लीटली सेफ मूवमेंट, आप उसको इजीली लोड कर सकते हो अगर आप उसको ढंग से एग्जीक्यूट करते हो तो। अगली चीज़ आती है विड्थ ऑफ द बार। तो ये ना ज़्यादा वाइड होना चाहिए ना ज़्यादा क्लोज। अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको थोड़ा नैरोअर ग्रिप रखनी है तो 1 एल्बो प्लस 1 to 3 फिंगर गैप रखो, और वाइडर ग्रिप रखनी है तो 1 एल्बो 4 to 5 फिंगर गैप। बार की मोटाई भी मैटर करती है, बेस्ट इज़ लिटिल फैटर ग्रिप। नेक्स्ट थिंग यू नोट डैट ऊपर आते टाइम हमारे पैर पीछे आने लगते हैं, तो जैसे पुलअप में बताया था कि पीछे पैर पीछे करने से लैट्स एक्टिवेशन अच्छी हो जाती है, पर डिप में लैट्स का क्या काम? So how activation of lats will help in upward movement of the dip. So when we come up in dip and by squeezing our glutes and legs, our legs move backward. जब हम ऊपर आ रहे हैं अगर हमारे हाथ बाहर खुल जाते हैं तो सारा इंटरनल रोटेटर्स पे आ जाता है, तो हमें अपने हाथ अंदर अडक्टेड रखने हैं। तो इसमें जो लैट्स है वो डिप के मूवमेंट को स्टेबलाइज कर रही है, और ऊपर आते टाइम यहाँ पे ये हाथ हमारे अंदर ही रहे तो लैट्स हेल्प कर रही है। तो ऊपर आते टाइम ये जो मिनिमल सा हिप एक्सटेंशन है ये हेल्प कर रहा है लैट्स को एक्टिवेट करने में डिप के टाइम। पर ये वाला मूवमेंट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा मूवमेंट होएगा फिर उतना ज़्यादा प्लेट्स भी स्विंग करेगी उसके साथ, और डिप ऊपर आने में बहुत मुश्किल और हो जाएगी। तो ऊपर आते टाइम स्क्वीज द प्लेट्स, स्लाइड हिप एक्सटेंशन और ऊपर स्ट्रेट। ज़्यादा करोगे तो वेट स्विंग हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं करोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डिप करना। डिप के बारे में भी हमने सब डिस्कस कर लिया है। एक और चीज़ डिप में जब आप ऊपर आते हैं अपने 1 rep मैक्स में तो आप ट्राई कर सकते हैं कि अपने गर्दन को ऊपर करें, मतलब आप ऊपर को देखें। अगर आप नीचे देखते रहेंगे और फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि ऊपर भी जाना है, लेकिन अगर आप मूवमेंट के साथ साथ ऊपर देखेंगे तो अगर आप ऊपर नहीं भी जा रहे तो ऊपर देखने पे ऐसा लगेगा कि हल्का सा ऊपर गए हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और वैसे भी जब हम अभी नीचे जाते टाइम हमारे शोल्डर पीछे गए थे, लेकिन ऊपर आते टाइम दे गेट एक्सटेंडेड, हमारी पूरी स्पाइन ऑलमोस्ट सीधी हो जाती है, तो उसके साथ अलाइन करने के लिए हमें सर भी सीधा करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे को तो हेल्प करती है, आप ट्राई कर सकते हैं, मे बी इट कैन हेल्प यू जब आप अपना 1 rep मैक्स ले रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड एलिमेंट इन स्ट्रीट लिफ्टिंग, दैट इज स्क्वाट।
तो स्क्वाट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और अभी मैंने सारी वीडियोस बनाई भी नहीं है। आज ही संडे है और ये मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्क्वाट की वीडियो अभी तक बनी भी नहीं है, तो मुझे वीडियो तो आज ही अपलोड करनी है। तो स्क्वाट मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पर इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ स्क्वाट्स के बारे में। अगर आप लो बार स्क्वाट करते हैं तो आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, और अगर आप हाई बार स्क्वाट करते हैं तो आपके क्वाड्स थोड़ा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। अगर आप वाइडर स्टांस लेते हैं तो आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग और अडक्टर्स ज़्यादा यूज होते हैं, और अगर आप क्लोजर स्टांस लेते हैं तो आपके क्वाड्रिसेप्स ज़्यादा यूज होते हैं। अगर आप टो आउट करेंगे जितना, उतना ज़्यादा पोस्टीरियर चेन स्ट्रेच होगी, टो इन करेंगे तो कम स्ट्रेच होगी। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि स्क्वाट के 1 रेप मैक्स लेते टाइम आप क्या क्या कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो आप नी स्लीव्स पहन सकते हो, आप रिस्ट स्ट्रैप्स पहन सकते हो, और एल्बो स्लीव्स भी पहन सकते हो अगर एल्बो में पेन है तो, पर एल्बो स्लीव्स का कुछ काम नहीं है वैसे स्क्वाट्स में। आप स्क्वाट बेयरफुट कर सकते हो या पावर लिफ्टिंग शूज में कर सकते हो। पावर लिफ्टिंग शूज तभी यूजफुल है अगर आपकी एंकल मोबिलिटी कम है तो, नहीं तो बेयरफुट स्क्वाट आप कर सकते हो। नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज में स्क्वाट्स ट्राई अवॉइड करें, क्योंकि उसमें जो सोल है उसमें कुशन होता है, तो अनस्टेबल सरफेस होता है नीचे बहुत। तो अगर आपके पास कोई फ्लैट सोल्ड शूज हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर बेयरफुट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है स्क्वाट्स में, जैसे कुछ लोगों का फीमर लंबा होता है, कुछ लोगों का फीमर छोटा होता है, तो उसका स्क्वाट बायोमैकेनिक्स उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जो सिर्फ स्क्वाट के बारे में होगी। सो इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। मैंने वैसे भी पिछले हफ्ते कोई वीडियो नहीं डाली थी, स्पेशली जो स्ट्रीट लिफ्टर्स हैं या जो स्ट्रीट लिफ्टिंग करते हैं वो तो शेयर कर ही सकते हैं इस वीडियो को। ऑल्सो वन मोर थिंग, देयर आर 2 स्पॉट्स अवेलेबल फॉर पर्सनल ट्रेनिंग। सो इफ यू लिव इन गुड़गांव, और अगर आपको मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो यू कैन DM me on Instagram for online and offline coaching both. So meet you in the next video. Till then, goodbye.